Do you think that at any level these prime ministers can be referred to as prime center pairs? Yeah, these people were actual bosses. They were captains. Indira Gandhi took the decision to declare emergency without consulting her cabinet colleagues. Rajiv Gandhi तो पार्लियामेंट में भी नहीं आते थे. There are so many MPs in the BJP who won the election. लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था, चाहे 2014 में हुआ, चाहे 2019 में हुआ, चाहे 2024 में हुआ, बहुत सारे MPs जो जीते हैं, वो अपने करिश्मा के कारण नहीं जीते हैं. They have won because people wanted to see Prime Minister Modi as the Prime Minister again. अगर बाहर की दुनिया में, बाहर के देशों में हमारे प्रधानमंत्री को जाना जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, तो this can help him in gaining greater prestige and power even within the country. This school of thought says, what are you talking about? Prime Minister pair? Prime Minister is not a coordinating functionary or a functionary who facilitates the evolution of a consensus और वो जो सारी चीजें कैबिनेट डिसाइड करता है. No, this school of thought says the Prime Minister is effectively the boss. Hi friends, this is M. Puri again, faculty for Polity Governance and Social Justice at Sathi Platform. अच्छा, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि यूपीएससी ना कई बार 8-10 साल बाद किसी ना किसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करती रहती है, स्पेशली आपके मेन प्री के अंदर तो बहुत रिपीट होते हैं, राइट, लेकिन मेंस के अंदर भी रिपीट होते हैं, राइट. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट एक जो मैं क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूँ ना, यूपीएससी ने आज से बहुत साल पहले सिर्फ एक बार ही पूछा है. And that is a question I always tell my students कि इसको हमेशा प्रिपेयर करके जाओ, because this is a question the UPSC can ask at any point of time, possibly in this year's mains or the next year mains. वो कभी भी दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि this question has been asked just once, and many people are not able to give an accurate answer, a precise answer to the demands of this question. तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि भाई व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, राइट. अच्छा बेटा, जो आपकी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है ना, उसके ऊपर ना बेसिकली 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है, मतलब 2 तरह की धारणाएं हैं, 2 तरह की एक आप कह लो सोच है कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन किस तरह से वर्क करती है. व्हाट आर दोस 2 स्कूल्स ऑफ थॉट? ठीक है, ये मैंने लिख रखे यहाँ पे पहले. द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इज कॉल्ड द प्राइमस इंटर पेयर्स स्कूल. ये लैटिन फ्रेज है एक्चुअली, एंड दिस वाज कॉइन्ड बाय मॉर्ले, MORLEY, राइट. तो प्राइमस इंटर पेयर्स का मतलब क्या होता है? इसका लिटरल इंग्लिश मीनिंग होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स. मतलब ये स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि भाई जैसे आपका कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी तो कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर इज मच वेरी सिमिलर टू द अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स. He is not the boss of the cabinet or the boss of the government. He is not the captain. Decisions are taken by consensus, and Prime Minister is merely a coordinating functionary, and he helps in managing the discussions and debates in the cabinet with respect to policy. And his principal role is to coordinate and help evolve a consensus in the cabinet कि भी कौन सा क्या decision correct है किसी policy issue को address करने के लिए, and so on and so forth. मतलब ये school of thought ये कहता है कि जो PM है is not the boss. He is not the captain. ठीक है, and everything that happens in the government it takes place through a collective body that is the cabinet. और सारे decisions आपके cabinet के थ्रू होते हैं. cabinet consensus के थ्रू decision लेता है. prime minister is merely a coordinating functionary. मतलब he is like a first among equals. सारे equal हैं. he is a first among equals. जैसे आपके chief justice of India होते हैं. chief justice of India is ठीक है, he is the chief justice of India obviously. बट उनकी जो जुडिशियल पावर है दैट इज नॉट एनी मोर देन द जुडिशियल पावर ऑफ एनी ऑफ द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस. ठीक है, ही इज द चीफ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर. उसका मतलब होता है ही हेड्स द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली. सो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डिसाइड्स कि कौन से बेंच को कौन सा केस जाएगा, किस बेंच को कौन सा केस एलोकेट होगा, वो सब करते हैं. बाकी जुडिशियल पावर के अंदर जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो सीजेआई है उनमें कोई फर्क नहीं होता. तो समथिंग सिमिलर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर, कि अगर हम सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को एक लाइन में खड़ा करेंगे ना, तो सबसे आगे लाइन में इन द फ्रंट ऑफ द लाइन प्राइम मिनिस्टर खड़े होंगे. लेकिन पीएम तब भी बॉस नहीं है, तब भी कैप्टन नहीं है. व्हाट वी ट्रूली हैव इन द कंट्री इज अ गवर्नमेंट बाय अ प्लूरल बॉडी, अ कलेक्टिव बॉडी, दैट इज द कैबिनेट, दैट इज कैबिनेट का होगा. ठीक है, तो ये तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम प्राइमस इंटर पेयर्स कहते हैं. इसको ब्रीफ करने के लिए हम पीआईपी लिख देते हैं, राइट. अब एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट है. वो दैट स्कूल ऑफ थॉट, वो भी एक लैटिन फ्रेज है. दिस लैटिन फ्रेज यू कैन सी ओवर हियर, इट स्टैंड्स फॉर लूनर इंटरस्टेला मनोरिस, और इसका मतलब होता है अ मून अमंग द लेसर स्टार्स. और ये वाला फ्रेज कॉइन किया था प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्नॉन ने. जैसे जो पिछला फ्रेज था वाज कॉइन्ड बाय मॉर्ले टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट. नाउ दिस फ्रेज वाज कॉइन्ड बाय वर्नॉन. अबे यहां पे तो ये कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर इज लाइक अ मून अमंग द लेसर स्टार्स. तो कैबिनेट कोलीग्स को थोड़ा नीचे दिखा रहे हैं यहाँ पे,
and he's shown to be a shining moon, like a shining moon, the prime minister. So what it actually means is, this school of thought says, what are you talking about? Primus inter pares? Prime minister is not a coordinating functionary or a functionary who facilitates the evolution of a consensus, और वो जो सारी चीजें कैबिनेट डिसाइड करता है. No, this school of thought says the prime minister is effectively the boss. He is the captain. And people, whether they like it or not, eventually, if the prime minister wants some decision to be taken, whether the cabinet colleagues like it or not, well, he will naturally have his way. So this is what this school of thought says, exactly opposite to primus inter pares. तो वो कहते हैं कि PM is not like the boss. What we have is a cabinet government. This school of thought says कि PM is the actual boss यार. He is the captain. मतलब उनकी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं हो सकता. That's the idea over here. So what we have is not a government by the cabinet. We have government by the prime minister, and this is referred to as prime ministerial government. Instead of, देखो कैबिनेट तो यहां पे भी होगा, no doubt about that. But इस कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर की बात सबसे ज्यादा मानी जाती है. In the sense, any minister in the cabinet who does not agree with the prime minister, या तो प्राइम मिनिस्टर उसको सैक कर देंगे या फिर he has to submit his resignation. ठीक है, तो मतलब प्रधानमंत्री एक फर्स्ट अमंग इक्वल नहीं है, ये बॉस है. He is effectively the captain of the ship of the state. अब आपके पास दो फ्रेजेस आ गए. ठीक है, एक तो बेटा मैंने बताया ना आपको क्वेश्चन क्या आया था. क्वेश्चन ही आया था आपको कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट. वो तो आपको बता दूंगा. आपको क्वेश्चन ये इस तरह से भी आ सकता है कि इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंट फ्रेजेस, ये कन्वीनियंट फ्रेजेस ही तो है. प्राइमस इंटर पेयर्स, लूना इंटरसेल्युलर मनोरेस. But instead of describing the position of prime minister in terms of these convenient phrases, it's always best to look at how the position of prime minister evolves under different prime ministers. अब आप एक बात देखिए, हम अगर let us talk about, I'll give some examples here. Let's talk about people like Prime Minister Nehru, Prime Minister Indira Gandhi, Prime Minister Rajiv Gandhi, and Prime Minister Modi. Do you think that at any level these prime ministers can be referred to as primus inter pares? Yeah, these people were actual bosses. They were captains. Indira Gandhi took the decision to declare emergency without consulting her cabinet colleagues. Rajiv Gandhi तो parliament में भी नहीं आते थे. I mean, he was effectively the boss of his government, boss of his council of ministers and the cabinet as such. And Prime Minister Modi is equally a very strong prime minister. Can anybody call him a first among equals? Or for that matter, can anybody call Nehru, Indira ji, Rajiv ji, and Modi ji a first among equals? Not even for a second. But if you look at the other prime ministers who were largely products of जो कोलिशन गवर्नमेंट्स के प्रोडक्ट्स थे, तो बेटा कोलिशन में तो ऐसा होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बॉसीगिरी तो दिखाई नहीं सकता. ठीक है, उसका कारण ये है कि अगर ज्यादा बॉसी करेगा तो फिर नेचुरली जो बाकी कोलिशन पार्टनर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे और देन दे विल थ्रेटन कि भाई हम आपकी सरकार को छोड़ देंगे. और जैसे कोलिशन पार्टनर सरकार को छोड़ा तो सरकार गिर जाएगी आपकी. ठीक है, तो यूजुअली यू विल फाइंड दैट पीपल हु आर प्राइम मिनिस्टर्स हु हैव बीन प्रोडक्ट्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स लाइक मनमोहन सिंह आल्सो फॉर दैट मैटर. ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी हैं, he approximates more closely to primus inter pares. But prime ministers like these, they approximate more closely to lunar interstellar manores. ठीक है, तो वही बात हुई ना आपकी कि भी instead of describing the position in terms of convenient phrases like lunar interstellar manores या primus inter pares, it's better to see कि एक प्रधानमंत्री की पोजीशन कैसे इवॉल्व करती है under different prime ministers. So these four prime ministers can never be referred to as primus inter pares, but the products of coalition governments, whether it was your चंद्रशेखर जी और फॉर दैट मैटर वीपी सिंह जी थे या मनमोहन सिंह जी थे या फिर आपके एच डी देवेगौड़ा थे, तो बेटा ये लोग उस तरह से कैप्टन नहीं बन सकते, उस तरह से अपनी नहीं चला सकते. दे कैन नॉट जस्ट रन द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन विम्स एंड फैंसीज बिकॉज दे हैव टू टेक ऑल द कोलिशन पार्टनर्स अलोंग. तो इस सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग इज लार्जली डन बाय कंसेंसस इन द कैबिनेट एंड व्हाट यू ट्रूली हैव इज अ कैबिनेट गवर्नमेंट, राइट. बट when you talk about prime ministers like these four, अरे बेटा ये तो बिल्कुल भी primus inter pares के पास नहीं आते. अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि भी what are the factors responsible for the rise of a prime ministerial government? ये राइज क्यों होती है? ऐसा क्यों हुआ कि इन 4 प्राइम मिनिस्टर्स के अंदर प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट आई और बाकी जो कोलिशन रेजिम्स के प्रोडक्ट थे वो यूजुअली आपके primus inter pares की तरफ ही ज्यादा अप्रोक्सीमेट करते हैं. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द फैक्टर्स. क्या फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर the rise of your prime ministerial government. अब बेटा फैक्टर्स को मैंने डिवाइड किया 2 कैटेगरीज के अंदर और सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहली कैटेगरी. दिस इज पर्सनल एंड पॉलिटिकल फैक्टर. फॉर एग्जांपल
इफ द प्राइम मिनिस्टर इज द टॉलेस्ट लीडर इन हिज पार्टी, मतलब उनकी पार्टी में उनके नजदीक कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो उनके नजदीक भी आ सके. प्राइम मिनिस्टर नेहरू वॉज, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ वल्लभ भाई पटेल. इंदिरा गांधी वॉज, राजीव गांधी वॉज, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज. कोई उनके आसपास नहीं आ सकता पार्टी के अंदर. ठीक है. सेकेंडली, इफ द पीएम इज द टॉलेस्ट लीडर नॉट जस्ट इन हिज पार्टी, ही इज द टॉलेस्ट लीडर इन द कंट्री. बेटा जो मर्जी कह लो, व्हाटएवर हैज बीन हैपनिंग इन द पास्ट आल्सो, यू विल नो वन थिंग, दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर इन द कंट्री. ठीक है. एंड सिंस ही हैज बीन, सिंस 2014 he has been the tallest leader in the country. Thirdly, is he the celebrity vote getter? What is a celebrity vote getter? देखो बेटा, there are so many MPs in the BJP who won the election. लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था, चाहे 2014 में हुआ, चाहे 2019 में हुआ, चाहे 2024 में हुआ, बहुत सारे MPs जो जीते हैं वो अपने करिश्मा के कारण नहीं जीते हैं. They have won because people wanted to see Prime Minister Modi as the Prime Minister again. You got my point now? So very often people don't vote for the party. They vote for the person projected by the party to become their prime minister if they win the polls, right? तो बेटा अगर एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी, जो आपकी लेजिस्लेचर पार्टी होती है जिसमें एमपीज होते हैं, उनका इलेक्शन हुआ है आपके कारण, मतलब उनके अपने करिश्मा के कारण नहीं हुआ, बिकॉज पीपल वांटेड यू टू बी द प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर मोदी टू बी द प्राइम मिनिस्टर. यार नेचुरली दिस इज द काइंड ऑफ थिंग व्हिच रेजेस द पावर एंड द प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन इन द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर सो मच लाइक नथिंग एल्स. मतलब majority of, if not all, majority of members of the BJP also today cannot claim that they won the election on their own. They won because they were, basking in the reflected glory of Prime Minister Modi himself, right? उनके कारण जीते हैं. और इसलिए तो होता है कि जब भी लोकसभा इलेक्शन होता है तो जो बीजेपी के कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री जी को बुलाते हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके रैली कर दो, उससे हमारे जीतने के चांसेस और बढ़ जाते हैं. व्हाई डू दे कॉलिंग फॉर द रैलीज? बिकॉज ही इज द सेलिब्रिटी पर्सन who gets the vote for the party and vote for all the candidates. ठीक है. चौथा फैक्टर है कंफर्टेबल मेजॉरिटी. ये बहुत जरूरी है भाई. मैंने बता दिया ना आपको, इवन इफ यू आर द टॉलेस्ट लीडर इन द कंट्री, इफ यू आर रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट, तो थोड़ा बहुत तो आपके विंग्स क्लिप करेंगे, कोलिशन पार्टनर्स आपके विंग्स को क्लिप तो करेगा ही करेगा. आप मतलब इफेक्टिवली एक बॉस की तरह तो वो नहीं कर सकते. लेकिन इफ यू सेटिस्फाई द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स प्लस यू ऑल्सो हैव अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी इन द लोकसभा, मतलब अपनी पार्टी की अपनी मेजॉरिटी है. जैसे 2014 में बीजेपी की आई, 2019 में दोबारा आई, बढ़ गई मेजॉरिटी, राइट? 2024 में थोड़ी सीटें कम हुई, बट दे आर स्टिल क्लोज टू मेजॉरिटी, राइट? सो इस सिचुएशन के अंदर अगेन द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन नेचुरली बिकम्स द मोस्ट टावरिंग फिगर इन द एंटायर गवर्नमेंट. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लोग ओवरलुक करते हैं, दैट इज द इंटरनेशनल प्रोफाइल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. देखो बेटा ऐसा है, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज नोन आउटसाइड, heard outside, respected outside the country. Understand one thing, Prime Minister is the face of the country. ठीक है. अगर बाहर की दुनिया में, बाहर के देशों में हमारे प्रधानमंत्री को जाना जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, तो दिस कैन हेल्प हिम इन गेनिंग ग्रेटर प्रेस्टीज एंड पावर इवन विद इन द कंट्री. मतलब अगर बाहर देश के बाहर योर प्राइम मिनिस्टर इज हर्ड, ही इज नोन, ही इज रिस्पेक्टेड, so then this particular situation can help him in gaining greater prestige and power even within the country. ठीक है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं which have the effect of producing a prime ministerial government are the personal and the political factors. ठीक है. अच्छा बेटा, इसके बाद ना आपके आते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. ठीक है. अच्छा, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रधानमंत्री को थोड़ा बहुत प्री एमिनेंस तो देते ही देते हैं. मतलब आप इस बात को समझो कि these factors give some kind of added weight to the position of any prime minister, whether he is a product of a coalition government, whether he is or is not the tallest leader in the country, whether he is not the tallest leader in the party also. मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हर प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है उसको थोड़ा बहुत तो एलिवेट करके रखते ही हैं. लेकिन अगेन ये जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं ऑन देयर ओन कैन नॉट प्रोड्यूस प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सनल फैक्टर्स, राइट? अब ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या है? बेशक मनमोहन सिंह जी हो आपके प्रधानमंत्री, चाहे मोदी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे आपके राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो. अब ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स तो बेटा सारे प्राइम मिनिस्टर्स की पोजीशन को थोड़ा बहुत एलिवेट करते हैं, उसको थोड़ी प्री एमिनेंस प्रदान करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स आर दोस? फर्स्ट ऑफ ऑल, you be a product of even if the PM is the product of a coalition regime, but nobody can deny him this position. Every PM is the chairperson of the cabinet and the council of ministers. Every PM is responsible for allocating of portfolios. Portfolios क्या होती है? मिनिस्ट्रीज होती हैं. किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी? ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दिस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस एंड बार्गेन्स बिटवीन वेरियस कोलिशन पार्टनर्स, बट इन द एंड इट्स द पीएम दैट एलोकेट्स पोर्टफोलियोज.
Then it's the PM who reshuffles the portfolios. Reshuffling का मतलब क्या होता है? किसी मिनिस्टर को, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर था उसको होम मिनिस्टर बना दिया, या जो पहले होम था उसको डिफेंस बना दिया, कोई और मिनिस्टर था तो उसको कोई और मिनिस्टर बना दिया, तो इसको रिशफलिंग कहते हैं. Who does that? The prime minister only. ठीक है. Then death or resignation of the death or resignation of, यहां पे लिख लीजिए PM dissolves the council of ministers. भाई अगर एक ऑर्डिनरी कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन हो जाती है तो नथिंग हैपेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. बट इफ द पीएम, regardless of how strong or weak or moderately strong or moderately weak a prime minister is, whether he's a product of coalition government or his party has a clear majority in the house, but if the PM is to die or resign, the council of minister gets dissolved. And then you also are familiar with the fact that the prime minister is the leader of the house. Leader of which house? Of whichever house is a member. If he is a member of Lok Sabha, like Prime Minister Modi is, so he becomes the leader of Lok Sabha. If he is a member of Rajya Sabha, so he becomes the leader of Rajya Sabha. तो हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे वो 10 साल तक राज्यसभा से आए, सो ही वाज द लीडर ऑफ राज्यसभा. जैसे हर हाउस के अंदर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है उसी तरह से लीडर ऑफ हाउस होता है. सो पीएम ऑटोमेटिकली बिकम्स द लीडर ऑफ दैट हाउस of which he is a member. If he comes from Lok Sabha, he is the leader of Lok Sabha, as Prime Minister Modi today is. And if he is the member of Rajya Sabha, as Manmohan Singh was, so he was the leader of Rajya Sabha. Okay. So move further. Then it's the Prime Minister who is also the chairperson of some very important bodies. अब ये position उनसे कोई नहीं छीन सकता. चाहे आप मनमोहन सिंह हो, चाहे आप देवे गौड़ा हो, चाहे आप कोलिशन गवर्नमेंट के प्रोडक्ट हो, चाहे आप सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के प्रोडक्ट हो. These are positions which nobody can take away from the Prime Minister. Such as he is the chairperson of several important bodies like नीति आयोग, उससे पहले प्लानिंग कमीशन और एक बॉडी होती थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल. भाई इनके चेयरपर्सन और हेड्स तो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे ना हमेशा. But this is a position nobody can take away from the prime minister. ठीक है, even if he is a product of a coalition government. ठीक है. Next institutional factor which strengthens the position of every prime minister is that the prime minister is supported by two very powerful bodies in the central government. That is the cabinet secretariat and this. ये तो बेटा, this is kind of the most powerful. That practically when you have a very strong prime minister, all the power of the government gets concentrated in the PM only. You know this thing, right? So cabinet he is supported by two very high profile bodies, very powerful bodies in the government. One is the cabinet secretariat and the other is the prime minister's office. एक और factor देखते हैं which strengthens the position of the prime minister regardless of whether he is primus inter pares or luna inter salem minores. देखो बेटा, by convention ना जो हमारे prime ministers हुए हैं, they have largely ये convention है, ये कोई rule या law नहीं है. कुछ बड़ी critical departments ना वो किसी मिनिस्टर को एलोकेट नहीं करते, वो अपने पास ही रखते हैं. वो कौन से क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री अपने पास ही रखते हैं और बाय कन्वेंशन ये हर प्रधानमंत्री रखते हैं, राइट? सो बाय कन्वेंशन ही हेड्स सर्टेन डिपार्टमेंट्स, क्रिटिकल पोर्टफोलियोज लाइक द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बड़ा क्रिटिकल है बेटा. सो इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड देन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जिसको आप कई बार डीओपीटी कहते हो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. माइंड यू, डीओपीटी इज जस्ट अ डिपार्टमेंट विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल. सो ये जो तीन पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली हैंडल करते हैं. ठीक है. अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं यहां पे और यहां पे लिखूं प्राइमस इंटर पेयर्स और यहां पे लिखूं लूना इंटर स्टेला माइनोरिस, ठीक है, तो यहां पे तो मैंने आपको जो 4 प्राइम मिनिस्टर बताए थे आपको, नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और मोदी जी, वो यहां पे आ जाते हैं. और बाकी जितने भी कोलिशन प्राइम मिनिस्टर्स हैं आपके वो यहां पे आ जाते हैं जो कोलिशन के प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. लेकिन एक पीएम को छोड़ के, ठीक है, एंड दैट प्राइम मिनिस्टर वाज प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. ठीक है. इवन दो अटल बिहारी वाजपेयी was also a product of a coalition government, yet he cannot be conveniently placed either here or here. देखो उनकी रिस्पेक्ट बहुत थी ना उनके कोलिशन पार्टनर्स के अंदर, तो जब वो चाहते थे तो वो फर्मली डिसाइड भी करते थे. ठीक है. और कोलिशन पार्टनर के साथ उनको मजबूर होना पड़ता था उनके साथ चलने के लिए, राइट? You know, Atal Bihari Vajpayee was always referred to as a blend of caution and firmness. देखो, firmness pushes a person towards this side, being the effective boss. Caution pushes a person towards this side.
So he used to act, he was a product, he was a combination of caution and firmness. So which means he can neither be placed here nor be placed here. So the only exception to the trend, most of the coalition government products were over or on this side, that is prime minister pairs, and most of these four obviously on the other side, they were effective bosses. But leaving aside this one personality, that is Atal Bihari Vajpayee, who cannot be conveniently placed in any of these two. He can be placed, easily in the middle. Because sometimes he used to go along with the coalition partners, but sometimes he used to decide very resolutely and very firmly. Right. So that's why he was called a blend of caution, which pushes him towards this direction, and firmness, which pushes him towards this direction. So I hope this brief discussion on the nature of prime ministerial government, the two schools of thought which are there with respect to how do we view the position of the prime minister. और फिर आपको मैंने क्या बताया, आपको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट. या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन in terms of different phrases, right, like the ones we discussed, prime minister inter pairs, Luna interstellar minores, it's better to see how the position of the prime minister evolves under different individuals, under different incumbents जो उस position को hold करते हैं. Okay, I hope you'll be able to write the answer if this question comes again. Thank you. I'll see you again.